السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا معزز و محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ چند نشستوں سے سورۃ الفاتحہ دورہ کو سیکھنے سکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میسر آیا ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کے اندر ہمیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہی میں چند گزارشات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے خدایا ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی انتہائی اہم ترین آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر بے شمار خلاصے اور بے شمار باتیں ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کے حضور بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پنجگانہ نماز کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ بار بار یہ آیت دہرا رہا ہے، بار بار اس آیت کا تکرار کر رہا ہے، بار بار اپنی نیاز مندی کو رب کے حضور پیش کر رہا ہے، لیکن یہ الفاظ تک ہی محدود رکھ دیے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ہم نے جسارت نہیں کی۔ بار بار ایک مسلمان دہرا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پہلی رکعت کے اندر، دوسری کے اندر، تیسری کے اندر، چوتھی کے اندر وہ دہرا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، مگر اسے معنی کا مفہوم کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مان رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے، کس چیز کو وہ رب کے حضور اپنی جولی بچھا کر وہ جولی پھیلا کر وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگ رہا ہے۔ افسوس ہے نا اس بات کے اوپر کہ مانگ رہا ہے رب سے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ مانگ کیا رہا ہے، کس بات کا وہ سوال کر رہا ہے، کس بات کو وہ طلب کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں نا ترتیب کس انداز کے ساتھ ہوئی، کس انداز کے ساتھ اس کو مرتب کیا گیا کہ پہلے حال کے جل وعلا کی تعریف کر رہا ہے بندہ، خدا کا بندہ رب کے حضور کھڑے ہو کر رب کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ، اس کی ربوبیت کا ذکر کر رہا ہے، اس کی صفات کا ذکر کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے، اے مولا میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جس دن تو مالک ہوگا ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، یہ روب اور دبدبے اور متکبرانہ انداز سے، شاہانہ انداز سے کہنے والے
खामोश हो जाएंगे, हम बादशाह हैं, तू उस वक्त का बादशाह। और फिर अपने रब क़यामत की हाकमियत को बंदा इजहार कर रहा है, को तस्लीम करता है, फिर बंदगी का ऐलान करता है, मदद का ऐलान करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए खुदावन मैं तुझ ही से मदद तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब फिर ये दुआ पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इतना कुछ कहने के बाद, इतना कुछ इजहार करने के बाद उसकी रबूबियत का जिक्र किया, उसकी तारीफ को बयान किया, उसकी बंदगी का ऐलान किया, उसकी हाकमियत को तस्लीम किया। अब सारी चीजें करने के बाद बंदा रब के हुजूर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आया क्यों है भाई? ये देखे ना, दुनियादारी का उसूल भी यही है कि जब आप किसी साइल किसी के दरवाजे पे दस्तक देता है तो दस्तक देने के बाद वो सबसे पहले उसकी तारीफ करता है, उसकी सिफ्तों का तज़किरा करता है, उसकी सहाबत का जिक्र करता है, उसके बारगाह में खड़ा होने का जिक्र करता है, फिर मांगता है कि मैं मांगने क्या आया, सवाल मेरा क्या है। इतने तज़किरे बिला तशबीह और बिला मिसाल, इतने तज़किरे करने के बाद बंदा खुदा बंदे कुद्दूस से कहता है, ए मालिक मौला, मैंने तेरी रबूबियत का इजहार किया, तेरी तारीफ बयान की, तू पाक है, अगर मैं तेरी तारीफ ना भी करूं तो फिर भी तू पाक है, तू फिर भी रहमान है, तू फिर भी रहीम है, लेकिन मैं इजहार करूँ। अब बंदा गोया कि रब ताला अपने बंदे से सवाल करता है, बंदे क्या मांगना चाहता है? वो बंदा कहते हैं दुनियादारी चाहता है, तख्तो ताज चाहता है, ओहदा चाहता है, या इज्जत व जाहो जलाल चाहता है। तो बंदा कहता है नहीं भाई, खुदा ए खुदा मालिक कुद्दूस, हाथ जोड़ के मैं तेरी साथ बारगाह में हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत की तरफ चला, हिदायत की तरफ चला, हिदायत। अब देखे ना कुरान मजीद में फरमाया इहदीना, इहदी का माना क्या है? हिदायत देना, रास्ता दिखाना, और एक है मंजिल तक पहुंचा देना। एक माना ये है रास्ता दिखाना और एक है मंजिल तक पहुंचा देना। गोया के बंदा खुदा ये कह रहा है, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा ही ना, बल्कि सिराते मुस्तकीम की तरफ पहुंचने की तौफीक, उस तरफ पहुंच जाए, उस तरफ चले जाए जो सीधा रास्ता है, उसकी तरफ जाए। अब देखें, मिसाल देकर आपको बात समझाता हूं। एक बंदे ने गुजरात जाना हो, हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसने अगर गुजरात जाना हो तो गुजरात जाने के लिए वो कहता है, फलां बंदे से पूछता है, जनाब आप मुझे गुजरात का रास्ता बता दें, मैंने जाना है। वो कहता है यहाँ से फलां टर्न लो, फलां टर्न लो, फलां टर्न लो, तुम गुजरात पहुंचता हो। अब एक बंदा खुदा बंदे कुद्दूस, वो बंदा अब तलब ये कर रहा है कि मुझे रास्ता दिखा दे। वो ये कहता है, चलो जी तुमने गुजरात जाना है तो तुम अकेले ना जाओ, मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूं, मैं भी तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जाता हूं, तुम्हें रास्ता दिखाना तो बड़ी दूर की बात है, अब तुम्हें मैं रास्ते तक पहुंचा देता हूं, मंजिल तक पहुंचा देता हूं। तो आसान कौन सा हुआ जो मंजिल तक पहुंचा? गोया के बंदा अपने रब से इजहार इस बात का करे, मौला इस रास्ते के अंदर जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, सीधा रास्ता है, जिसकी हिदायत की दुआ मांगने की तौफीक, दुआ मांगने का अर्ज फरमा रहा है, ऐ अल्लाह इस रास्ते पर मकर भी होंगे, फरेब भी होंगे, शैतान भी होंगे, गासिब भी होंगे, जालिम भी होंगे, शरीर भी होंगे, सारे होंगे। अब इनसे अकेला तो मैं लड़ नहीं सकता, अब लड़ने के लिए जो चीज मुझे चाहिए वो तेरा साथ है। फरमाया मुझे मंजिल मकसूद तक तू पहुंचा, इहदीना, इहदीना, हमें रास्ता दिखाना, देखा हमने हुआ है,
रास्ता हमने देखा है। रास्ता कौन सा देखा हुआ है? वही रास्ता जो अंबिया का रास्ता है, वही रास्ता जो सहाबा का रास्ता है, वही रास्ता जो उम्मत के औलिया का रास्ता है, वही रास्ता है भाई, वही रास्ता है, वही रास्ता है। उस रास्ते की हिदायत की दुआ मांग रहा है बंदा, अपने रब के हुजूर हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐ मालिको मौला, तू हमें उस रास्ते तक, उस मंजिल तक पहुंचा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहता है सीधे रास्ते पर चला, वाज़ेह रास्ता हो, टेढ़ा ना हो, दरमियानी हो, जिसमें अफराद भी ना हो, तफरीक भी ना हो, बढ़ाओ भी ना हो, चढ़ाओ भी ना हो, और अगर बढ़ने की तरफ हो इतना ज़्यादा भी है ना, इफराद भी बड़ी बुरी चीज़ है और तफरीक भी बड़ी बुरी चीज़ है। मिसाल के जरिए समझ ले, एक बंदा फजूल खर्ची करता है, ये अफराद है। और तफरीक क्या है? बंदा अपनी ज़ात में भी खर्च नहीं करता, माल और दौलत उसके पास मौजूद है, लेकिन वो अपनी ज़ात में भी खर्च नहीं करता। अब क्या है? वो तफरीक, हिदायत। अब हिदायत की 3 किस्में हैं, या फरमाते 3 किस्मों की हिदायत उन किस्म है। वो क्या है? पहली है हिदायत फितरत, इंसान के दिल में, हर इंसान के दिल में खैर और शर का शऊर अल्लाह ताला ने रख दिया है कि ये सीधा रास्ता है, ये बुरा है, ये सीधा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये टेढ़ा है। अब बंदे की मर्जी, वो सीधे पे चलेगा, शऊर तो रब ने दे दिया। अब जो रास्ते पर जाकर वो आसान कर, मंजिल आसान करना चाहिए, वो कर सकता है। बात समझ में आ गई? दूसरी अगली बात है हिदायत ने फितरत के बाद हिदायत इरशाद, जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, अंबिया के जरिए बंदे को मुयस्सर हिदायत इरशाद। आगे है हिदायत, ये सबसे जरूरी चीज है जिसके जरिए इंसान ने की राह पर चलकर ये रब की तौफीक से बंदे को मुयस्सर। और इस सवाल है ना, हिदायत की तो बात हमने, रास्ता दिखाना है, रास्ता दिखाना, दर्जात बुलंद कर, एक रास्ता दिखा। वो रास्ता कौन सा रास्ता? फरमाया सिरातुल मुस्तकीम, हमें उस रास्ते पर पहुंचा। किस रास्ते पर बंदा खुदा जाना चाहता है? फरमाया सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता, वाज़ेह रास्ता। वो कौन सा रास्ता है? वो कौन सा रास्ता है? फरमाया अल इस्लाम, वो इस्लाम है जो सीधा रास्ता। जो भी अब इस्लाम से राह जुदा करेगा, इस्लाम से हटेगा, इस्लाम की राह को छोड़ेगा, हिदायत उसके मुकद्दर में नहीं आ सकती। वो चाहता है हिदायत मुझे मिल जाए, लेकिन हिदायत अब उसको मुयस्सर। और फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर आप बताएं सीधा रास्ता कौन सा है? फरमाया वो रास्ता सीधा रास्ता है जो नबी का रास्ता है, जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का रास्ता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का रास्ता है। वो रास्ता है जो निजात का रास्ता है। अगर बंदा निजात हासिल करना चाहता है दुनिया और आखिरत में, वो उस तरीके पर चले जो नबी और सहाबा का तरीका है, उस पर चले। अब हम मुसलमान हैं, हिदायत क्यों मांगते? बार बार आप दोहराते ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिमाग में खड़े होते तो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सवाल बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हिदायत नहीं हमारे पास है, लेकिन मांग क्यों रहे हैं? बार बार क्यों सवाल कर रहे हैं? बार बार सवाल करने का मकसद और मतलब यही है, इसलिए मांग रहे हैं। हिदायत मिली है, कल भी जारी है, बरकरार रहे। गोया के इंसान अपने रब के ऊपर यही कहना चाहता है,
अल्लाह ये जो हिदायत तूने मुझे दी है ना, इसको बरकरार रखना, इसमें मुझे इस्तकामत अता करना, इसमें मुझे इस्तकामत अता करना। ये हर दौर के फितने ने, हर कदम पर अल्लाह ताला की रहनुमाई, हर कदम पर उसकी तौफीक है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान का जो है वो ईमानदार हो जाए। ये आयत मुबारक हमें सबक देती है कि सबसे बड़ी तौफीक जो है वो हिदायत है और सीधे रास्ते पर चलना है। अगर बंदा सीधे रास्ते पर चलता है रब तौफीक उसके सामने आती है। फिर इस आयत मुबारक का खुलासा तौफीक रब की होती है। बंदा मस्जिद में नहीं आ रहा तो शायद उसे रब अपनी बारगाह में बुलाना ही नहीं चाहता, रब उसे अपनी बारगाह में कबूल करना ही नहीं चाहता। तौफीक मांगते ये रास्ते की हिदायत हमेशा मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कुछ हमने कहा सुना, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है कि कुरान मजीद का उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुरान हमें क्या पैगाम दे रहा है और किस तरह हमें कुरान बता रहा है।